हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। कल के लेक्चर में डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट करा था। मोस्टली सारी डेफिनेशंस कवर कर ली हैं, जो बची हुई हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ लोगों ने बोला था फ्री रिजर्व समझ में नहीं आया, तो उसको मैं लास्ट में या तो कवर करूंगी या फिर मैं कल बताऊंगी। आज हम बची हुई डेफिनेशन क्लॉज कवर कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 2, क्लॉज 87, subsidiary company or subsidiary. In relation to any other company, that is to say, the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises to control more than one half of the five, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. Explanation. For the purpose of this clause, a company shall be deemed to be a subsidiary company of a holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company. B. The composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or a majority of directors. C. The expression company includes any body corporate. D. Layer in the relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries. ये हमने जो रीड किया ये बैरैक की लैंग्वेज है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Subsidiary company is a company that is controlled by another company called the holding company. Control can be in two main ways. Clause 1, control of board of directors. The holding company controls the composition of the board of directors. Example, company A can appoint 4 out of 7 directors of company B. So company A controls company B's board. Company B is subsidiary. Clause 2, control of voting power. If a company owns more than 50% of voting rights in another company, that company becomes its subsidiary. Proviso limit on layers of subsidiaries. Holding companies cannot create unlimited chains of subsidiaries. Explanation A. Indirect control. Even control through another subsidiary counts. If a company A controls company C through company B, then company C is also treated as A's subsidiary. Example, A owns B, B owns C, then C is also considered subsidiary of A. तो सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के कंट्रोल में होती है और उस दूसरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो कंट्रोल हम दो तरह से चेक करते हैं। पहली चीज, क्लॉज 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल। तो अगर होल्डिंग कंपनी डिसाइड कर सकती है कि कौन डायरेक्टर्स बोर्ड में आएंगे और कौन नहीं आएंगे, कौन रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उनका कंट्रोल वहां पर है। एग्जाम्पल, कंपनी ए है और कंपनी बी है। अगर कंपनी ए कंपनी बी के 7 डायरेक्टर्स में से 4 अपॉइंट कर सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है, तो कंपनी ए के पास कंपनी बी का बोर्ड कंट्रोल है, मतलब इसलिए कंपनी बी को सब्सिडियरी माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्लॉज जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल, ये हमने देखा। और क्लॉज 2 है वोटिंग पावर का कंट्रोल। ठीक है, अगर कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो वो कंपनी उसकी सब्सिडियरी बन जाती है। और जो प्रोविसो है वो बता रहा है लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी की लिमिट्स। जैसे कोई भी एक होल्डिंग कंपनी है तो वो अनलिमिटेड चेन ऑफ सब्सिडियरीज नहीं बना सकती, एक लिमिट एसरटेन करी गई है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन ए, इवन कंट्रोल थ्रू अनदर सब्सिडियरी काउंट्स। इफ कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी सी थ्रू कंपनी बी, then company C is also treated as subsidiary. Example, A owns B, B owns C. Then C is also considered as subsidiary of A. तो सपोज आपकी एक कंपनी है, ठीक है, वो आपकी होल्डिंग कंपनी है। आपने उससे एक और कंपनी बनाई जो एक सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, अब उस सब्सिडियरी कंपनी से आप एक और सब्सिडियरी कंपनी बनाते हो, मतलब एक सब्सिडियरी से दूसरी सब्सिडियरी कंपनी बना लिया आपने। तो वो भी इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ। डायरेक्ट कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का उस सेकेंड सब्सिडियरी कंपनी पे नहीं है, पर इनडायरेक्ट कंट्रोल तो है, तो उसे भी सब्सिडियरी कंपनी ही कंसीडर किया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन बी देखते हैं।
What control of board means? Control exists if a company can appoint or remove all or most of directors. You don't need to own shares if you can decide who sits on the board. अगर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव करते हो, रिमूव करने की अथॉरिटी है, तो आप कंपनी को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास कंट्रोल ऑफ बोर्ड है। शेयर ओनरशिप जरूरी नहीं है, आपके पास शेयर होना कंपनी का जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन सी, मीनिंग ऑफ कंपनी। दिस रूल्स अप्लाइज not only to Indian companies but also to foreign companies, corporate bodies, registered entities. ये रूल सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज और रजिस्टर्ड एंटिटीज पर भी एप्लीकेबल होता है। एक्सप्लेनेशन डी, मीनिंग ऑफ लेयर। अ लेयर मीन्स ईच लेवल ऑफ सब्सिडियरी, एवरी स्टेप डाउन इन ओनरशिप इज अ लेयर। एग्जाम्पल, होल्डिंग कंपनी and subsidiary company is one layer, then subsidiary and its subsidiary company is the second layer. इसके बाद section 2 clause 46 holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. Explanation, for the purpose of this clause the expression company includes any body corporate. Holding company is the company that controls one or more other companies. Those controlled companies are called subsidiary company. तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है, अभी हम ऊपर भी पढ़ के एग्जांपल्स भी देख लिए, सब कुछ क्लियर हो गया है। जो मेन कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी है और जो उससे बनती है वो सब्सिडियरी कंपनी है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 55 मेंबर पे। In relation to a company means the subscriber to the memorandum of the company who shall be deemed to have agreed to become member of a company and on its registration shall be entered as member in its register of members. Every other person who agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered in the register of members of the company, every person holding shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner in the records of depository. A member of a company is a person whose name is officially recorded as a member in a company's or depository's record. Clause 1. Subscribers to memorandum. People who sign the memorandum of association automatically become the member when the company is formed. The founders of the company are members from the moment the company is registered. एक मेंबर वो पर्सन होता है जिसका नाम ऑफिशियली कंपनी के रिकॉर्ड्स या डिपॉजिटरी में रजिस्टर्ड हो गया होता है। क्लॉज 1 बताता है जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं कंपनी के। मतलब कंपनी के फाउंडर्स को कंपनी रजिस्टर होने के तुरंत बाद मेंबर्स मान लिया जाता है। क्लॉज 2, अदर मेंबर्स लेटर ज्वाइनिंग। Anyone who agrees in writing to become member buys or is given shares later and whose name is entered in the company's register of member becomes a member. Written consent and name in company's record is equal to member of a company. तो जो बाद में कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई पर्सन बाद में मेंबर बनना चाहता है तो वो रिटन में कंसेंट देता है। अगर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स में डाल दिया गया है तो वो ऑफिशियली मेंबर मान लिया जाता है या बन जाता है। मतलब आपकी रिटन कंसेंट होना चाहिए और आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, मैंडेटरी है वो, तभी आप मेंबर बनते हो कंपनी के। क्लॉज 3 मेंबर्स थ्रू डिपॉजिटरी। अगर आप शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखते हो और आपके शेयर्स एनएसडीएल या सीडीएसएल जैसी डिपॉजिटरी के थ्रू हैं तो इनका मतलब समझ लीजिए पहले। तो डिपॉजिटरी जो होती है बेसिकली वो शेयर्स का एक डिजिटल बैंक होता है। वैसे ही सीडीएसएल और एनएसडीएल शेयर्स संभालते हैं। आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डायरेक्टली हो या ना हो, पर अगर डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में आप एक बेनिफिशियल ओनर हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो पर्सन एक्चुअली शेयर्स का रियल ओनर है, भले ही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पड़े हों उसके। तो ये क्लॉज ये बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटर। क्लॉज 69, who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, or in the accordance with whose advice, directions or instructions the board
of directors of the company is accustomed to act, provided that nothing in subclause shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity. Clause A, named in company records. A person is a promoter if their name is mentioned in the prospectus or the annual return section 92. एक प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंपनी के अफेयर्स पर इन्फ्लुएंस रखता है. क्लॉज ए बोलता है नेम इन कंपनी रिकॉर्ड्स. अगर किसी भी पर्सन का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में है तो वो प्रमोटर बन जाता है, या फिर वो प्रोस्पेक्टस में आपका नाम हो या फिर एनुअल रिटर्न्स में एज पर सेक्शन 92. क्लॉज बी, कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स. If someone has real power over decisions, they are promoter, even if they are a shareholder, a director, or not officially holding any position. Example, a person owns 70% of shares and controls decision, he is a promoter. तो क्लॉज बी बोलता है अगर कोई भी पर्सन है जो कंपनी के डिसीजन पर रियल पावर रखता है तो वो प्रमोटर है. ये जरूरी हरगिज नहीं है कि वो किसी पोजीशन पे है या नहीं है. वो शेयर होल्डर या डायरेक्टर या कोई भी ऑफिशियल पोजीशन ना भी रखता हो तो भी वो प्रमोटर कंसीडर कर दिया जाता है. अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी के पास 70% शेयर हैं और वो डिसीजन कंट्रोल कर रहा है कंपनी का तो वो प्रमोटर है. तो अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमने अभी पिछले लेक्चर में डायरेक्टर पढ़ा था और यहाँ पे हम प्रमोटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी ये भी डे टू डे वर्क रेगुलेट कर रहा है और डायरेक्टर भी हमने देखा था डे टू डे चीजों में इन्वॉल्व होता है कंपनी की. तो कब डायरेक्टर प्रमोटर होता है? अगर डायरेक्टर कंपनी बनाने में इन्वॉल्व है या कंपनी के डिसीजन पर रियल कंट्रोल रख रहा है या बोर्ड उसके डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है तो वो प्रमोटर भी बन जाता है, उसे प्रमोटर भी माना जाता है. और कब वो प्रमोटर नहीं होता है? तो अगर डायरेक्टर सिर्फ प्रोफेशनल काम देख रहा है, सैलरी पे काम करता है, ओनरशिप या कंट्रोल नहीं रखता है तो वो सिर्फ डायरेक्टर है, प्रमोटर नहीं है. तो डायरेक्टर प्रमोटर कब नहीं होता? जब वो सिर्फ जॉब के लिए डायरेक्टर बना है, सैलरी लेता है, कंपनी स्टार्ट नहीं करी है, कंट्रोल नहीं रखता, तो वो सिर्फ डायरेक्टर है, प्रमोटर नहीं है. और जब वो कंपनी को, कोई भी डायरेक्टर कंपनी को स्टार्ट से एंड तक रेगुलेट कर रहा है, देख रहा है, सारी चीजें कर रहा है और डिसीजंस भी कंट्रोल कर रहा है, तब वो डायरेक्टर और प्रमोटर दोनों हो सकता है. तो ये चीज है. बेसिकली स्टार्टिंग से कौन था वो आपको देखना है. अब ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, अब आगे आते हैं. क्लॉज सी पे, बोर्ड फॉलोज देयर इंस्ट्रक्शन इफ द बोर्ड of directors usually act on someone's advice or directions, that person is treated as promoter. Exception, professionals like lawyers, chartered accountants, consultants who give legal or technical advice are not promoters just because the board listens to them. क्लॉज सी बोलता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूजुअली किसी के एडवाइस या डायरेक्शन फॉलो करता है तो वो भी पर्सन प्रमोटर ही है. एक्सेप्शन ये है कि प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, इनकी जरूरत पड़ती है, ये प्रमोटर्स नहीं है. ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये सिर्फ लीगल या टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं, तो वो प्रमोटर नहीं है, भले उनकी एडवाइस बोर्ड फॉलो कर रहा है तो भी. इसके बाद हम देखते हैं क्लॉज 31, डिपॉजिट्स. Includes any receipt of money by way of deposits or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. A deposit is any money received by a company in any form except those amounts that are specifically excluded by law in consultation with RBI. तो डिपॉजिट वो पैसा होता है जो कंपनी किसी भी फॉर्म में लेती है, पर वो पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाता जो लॉ या आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड किया गया हो. पीपीटी में देखिए एक्सेप्शन. Some types of money are not treated as deposits if the government and RBI have specifically excluded them, like certain bank loans, directors' money और security deposits. तो एक्सेप्शन, कुछ पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाता अगर गवर्नमेंट और आरबीआई ने स्पेसिफिकली उस पैसे को एक्सक्लूड किया हो तो. जैसे सर्टेन बैंक लोन्स हो गए, डायरेक्टर्स का पैसा जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो, या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स. Books of deposits. Clause 13 includes records maintained in respect of all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place, all sales and purchase of goods and services by the company, the assets and liabilities of the company, the items of cost as may be prescribed under law, section 148 in the case of company which belongs to any class of companies specified under this section. Books of accounts are the company's financial records that show
money received and spent, that is income and expenditure, sales and purchase of goods and services, assets and liabilities, what the company owns and owes, cost record for certain companies as required by law under Section 148. Section 148 of the Companies Act 2013 allows the government to require certain types of companies to maintain detailed cost records and to get a cost audit done for some companies like manufacturing, power, telecom, etc. The law does not only want normal accounts but also separate records showing the cost of production, services, and operations. बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं कंपनी का मनी रिसीव्ड या स्पेंड, इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, कितनी सेल्स हुई हैं, कितने परचेज हुए हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी अभी उनके ऊपर लाइबिलिटी है मतलब उधार है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये कुछ कंपनीज के लिए होता है जो कि सेक्शन 148 में मेंशन है। कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड करनी होती हैं, तो ये उन कंपनीज के लिए है। थोड़ा ब्रीफ में सेक्शन 148 देख लेते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट्स। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148 मेंशन करता है कि गवर्नमेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनी से डिटेल्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स ले सकती है, मंगवा सकती है और कॉस्ट ऑडिट भी करवा सकती है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पावर हो गई, टेलीकॉम हो गई, ऐसी कंपनीज होती हैं जो उनमें उनको सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग बुक्स नहीं बल्कि और डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ, सर्विस कॉस्ट कितना हुआ, ऑपरेशन कॉस्ट कितना हुआ, ये सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया has a place of business in India, whether by itself or through any agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. A foreign company is a company registered outside India that has a business presence and conducts business in India, physically or electronically. फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो, वो फॉरेन कंपनी होती है। अब इसके क्लॉजेस देखते हैं। क्लॉज 1 बोलता है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है, इंडिया में उसका ऑफिस है, ब्रांच है या एजेंट है जिसके थ्रू वो काम करती है, भले वो फिजिकली ऑफिस हो या ऑनलाइन है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम करती हो तो भी वो फॉरेन कंपनी ही है, फॉरेन कंपनी ही उसे कंसीडर किया जाएगा। क्लॉज बी क्या कहता है? बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो। पहला क्लॉज ए बोल रहा था कि आपका बिजनेस इंडिया में है, सेकंड आपकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही है। अगर वो कंपनी किसी भी तरह से इंडिया में बिजनेस करती है, जैसे सर्विसेज देना, कॉन्ट्रैक्ट्स करना, उसके क्लाइंट्स हैं उनसे डील कर रही है जो इंडिया के हैं, तो भी वो फॉरेन कंपनी ही है। जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई हैं पर इंडिया में इनके ऑफिस हैं और ऑनलाइन सर्विसेज भी देती हैं, तो ये फॉरेन कंपनीज के अंडर आती हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। क्लॉज ए है जैसे, ठीक है, इंडिया में ऑफिस है बट अभी कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है, स्टिल वो फॉरेन कंपनी है बिकॉज प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है इंडिया में क्योंकि इंडिया में ऑफिस है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज अगर हम देखें तो इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है पर इंडियन कस्टमर्स हैं उसके पास और इंडिया में ऑनलाइन सर्विसेज वो रेंडर कर रही है, तो स्टिल वो फॉरेन कंपनी कंसीडर हो जाएगी क्योंकि एक्टिविटी उसकी इंडिया में हो रही है। पहला ऑफिस है, दूसरा ऑफिस नहीं है पर कस्टमर्स हैं इंडिया में, या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, लेन देन या कुछ भी उसका बिजनेस इंडिया से रिलेटेड है, तो फॉरेन कंपनी है। इसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or by state government or governments or partly by the central government and partly by one or more state government and includes a company which is subsidiary of such government company. A government company is company where central government and or the state government owns 51% of the paid up share capital. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। पेड अप शेयर कैपिटल पिछले वाले में भी पढ़ के आए थे। पेड अप शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं,
दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल टू इन्वेस्ट। और अगर ये पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है 51% या फिर उससे ज्यादा, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सब्सिडियरी ऑफ सच गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडियरीज होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोर देन 51% ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो IOCL is government company. A power distribution company where state government owns 51% or more shares, that company is also a government company. तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें 51 से ज्यादा शेयर्स हैं, तो IOCL गवर्नमेंट कंपनी हो गई। वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखें, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। पीपीटी में देखिए, अ स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स सर्टेन लिमिट्स ऑन कैपिटल एंड टर्नओवर। क्लॉज 1, पेड अप शेयर कैपिटल। Paid up share capital is less than or equal to rupees 50 lakh or higher limit prescribed maximum 10 crores, so the company should not have very high capital. Example, paid up capital is equal to 40 lakh. It's a small company. Paid up capital is equal to 12 crore. It's not a small company. Clause 2, turnover. Clause 2, turnover. Turnover in the previous financial year is less than or equal to 2 crore or higher limit prescribed maximum 100 crores, so the company should not earn too much revenue. Proviso, even if a company meets capital and turnover limits, it cannot be called as a small company if it is holding or a subsidiary company, if it owns other company or is owned by other company. B, Section 8 company, companies formed for non-profit purposes. C, company under special act, companies created by other special laws. तो स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती, ठीक है, जो कैपिटल और टर्नओवर की सर्टेन लिमिट्स में स्टैब्लिश होती हैं। पेड अप शेयर कैपिटल क्लॉज 1 बताता है, तो पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 50 लाख से कम या 50 लाख तक होता है, या जिसकी अपर प्रिस्क्राइब लिमिट मैक्सिमम 10 करोड़ है, तो कंपनी का कैपिटल ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल में जितनी प्रिस्क्राइब लिमिट है इतना ही होना चाहिए। टर्नओवर देख लें तो टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ तक हो तो वो स्मॉल कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंटर्स है, पहली चीज कैपिटल ज्यादा नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्ट किया गया है, दूसरी चीज रेवेन्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रोविजो देख लेते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। अगर कंपनी का कैपिटल या टर्नओवर लिमिट फुलफिल करती है फिर भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। किन कंडीशंस में? इन कंडीशंस में, अगर कंपनी किसी और कंपनी को ओन करती है या किसी कंपनी के अंडर आती है तो। बी अगर हम देखें सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी नॉन प्रॉफिट या चैरिटी कंपनी है तो। क्लॉज सी बोलता है कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, तो स्पेशल लॉज के अंडर अगर कोई कंपनी बनी है तो। अगर ये सारी कंडीशंस हैं, होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है या अंडर स्पेशल एक्ट बनी है, तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, स्मॉल कंपनी नहीं कंसीडर करी जाएगी, भले वो टर्नओवर और कैपिटल की जो लिमिट्स प्रोवाइडेड हैं उसमें आती हो फिर भी। नेक्स्ट, a public financial institution is a financial body recognized by law or a government that provides finance or investment to companies. It includes LIC, Life Insurance Corporation of India, established under its own act, IDFC, Infrastructure Development Finance Company under Companies Act 1956, specified companies under Unit Trust of India Act, institutions notified by central government under Companies Act. Any other institution notified by central government with RBI's consultation if it is established by center or state act, or 51% or more shares are owned and controlled by government. A public financial institution is a government recognized financial body that provides funding, either established by law or majority owner by the government. तो ये एक फाइनेंशियल बॉडी है जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज होती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, जो कंपनीज को फाइनेंस, लोन्स या इन्वेस्टमेंट देती है। तो ये बेसिकली कंपनीज को या बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लें, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये अपने अलग एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 हो गया, ये पब्लिक को इंश्योरेंस सर्विस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है।
फिर IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये बहुत जो वास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बिजनेस के अंडर। स्पेसिफाइड कंपनीज अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सर्टेन कंपनीज को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया है या डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट दे देती है तो। इसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद RBI कंसल्टेशन, ये सिर्फ तब कंसीडर किए जाते हैं अगर वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुई हो या 51% से ज्यादा उसके पास शेयर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास उसके शेयर्स हैं तो, सेंट्रल या स्टेट दोनों में। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं, वो फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट या लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज करी गई होती हैं और कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेफिनेशन क्लॉज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Hit the bell icon for all the recent updates.